And now let's take you live across to Bharat Mandapam here in New Delhi, where Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Tex 2024. You can see the visuals of the Prime Minister Narendra Modi there at Bharat Mandapam in New Delhi, visiting the Bharat Tex 2024. Bharat Tex 2024 is scheduled to be held from today to 29th of February at New Delhi. To tell you, Bharat Tex 2024 is envisaged to be the biggest textile event at the global level, with exhibitors and buyers from over 40 countries. In fact, over 100 countries, Bharat Tex 2024 would be a comprehensive showcase of the entire textile industry value chain, from India's rich cultural heritage and textile traditions to the latest technological innovations. With over 1,000 exhibitors and more than 30,000 visitors from 100 countries, this mega event would include knowledge sessions, seminars and conferences, CEO roundtables, B2B and G2G meetings. On your screens, you can see the Prime Minister interacting with the artisans there. And now he's taking a round of the entire Bharat Tex 2024. There'll be a lot of live demonstrations there, cultural events and fashion presentations, which will provide an exceptionally creative and engaging environment, providing insights into the realms of textile, fashion, and most importantly, sustainability and style originating from the heart of India. Bharat Tex 2024 will exhibit designer as well as brand exhibitions, fashion shows, sustainability workshops and expert talks shall be the other highlights of the grand event. Well, we may tell you Bharat Tex 2024 is being planned as a consolidated and unique platform to position and showcase India's entire textile value chain, and also highlight strength in fashion, traditional crafts and sustainability initiatives, most importantly. Bharat Tex 2024 will be a unique platform to bring together leading players from the Indian and global textile sector. Besides highlighting the numerous existing and emerging opportunities, robust infrastructure, attractive incentives and other benefits available in India for global investors and buyers. Well, this would also represent a unique platform for global investors and buyers to explore India's strengths as a global manufacturer and consumer market. Bharat Tex 2024 is organized by a consortium of 11 textile export promotion councils and is fully supported by the government. Bharat Tex 2024 is built on the twin pillars of trade and investment, with an overarching focus on sustainability. The 4 days event will feature over 65 knowledge sessions with more than 100 global panelists discussing various issues facing relevance to the sector. It will also have dedicated pavilions on sustainability and circularity, an indie heart fashion presentation on diverse themes such as Indian textile heritage, sustainability, global designing, as well as interactive fabric testing zones and product demonstrations.
We may again tell you that Bharat Tex 2024 is expected to witness participation of policymakers and global CEOs, also with over 3,500 exhibitors, over 3,000 buyers from over 100 countries, and more than 40,000 business visitors, besides textile students, weavers, artisans, and textile workers. And with more than 50 announcements and MOUs expected to be signed during the event, it is envisaged to provide further impetus to investment and trade in the textile sector and help push up exports, which will be a huge benefit for India. It will be another key step to further the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. Bharat Tex 2024 would propel the industry's growth and showcase India's potential as a mature and also a competitive global sourcing destination in the global textile industry. This event will be used to highlight India's global strength, its sustainability initiatives, as well as its strengths across the value chain. Prime Minister Narendra Modi there at Bharat Mandapam, and in a short while from now, he will inaugurate the Bharat Tex 2024. Bharat Tex 2024 would be a comprehensive showcase of the entire textile industry value chain, from India's rich cultural heritage and textile traditions to the latest technological innovations and sustainability. With over 1,000 exhibitors and more than 30,000 visitors from over 100 countries, this mega event would include many knowledge sessions, seminars and conferences. There'll be a lot of CEO roundtables, B2B and G2G meetings, besides strategic investment announcements there. And for more, we have our correspondent Debyendu Muddal joining us from there. Well, Debyendu, a big day today. What can you tell us? What all is lined up? Well, Nipakshi, the Prime Minister will be inaugurating the Bharat Textile Expo 2024 in a short while from now. He has already reached the Bharat Mandapam, and I'm also inside the Bharat Mandapam. The Prime Minister has, just seen the exhibition at hall number 14, which has been set up as the theme pavilion that showcases Bharat's, or in fact India's, textile marvels from across different parts of the world. It also shows the methods, the techniques of textile yarning, to as well as samples of cottons from across different parts of the world. It's just not this. The theme of this Bharat Textile Expo 2024 is from farm to factory and factory to fashion and fashion to foreign. This is the chain of the commands that perhaps the government perhaps wants the industry to focus, and this Textile Expo is just doing that. In a short while from now, the Prime Minister Narendra Modi will be coming inside the Bharat Mandapam plenary hall, where the inauguration ceremony will take place. I'm given to understand that the Prime Minister is currently seeing the expo and different pavilions at the hall number 14, where he's been given understandings of how different textiles and how different forms of cottons, or how different forms of the different yarns are made, and different forms of textiles that are available in the country. So this is in fact a very big event for India, because this perhaps will act as a gateway of Indian textile to the world. We are having more than 100+ countries participating in
Tex 2024. We also have different CEOs from not just India but across the globe coming and holding meetings with different manufacturers as well as producers of textiles here in India. So, Lipakshi, that this event is of course one of the largest perhaps textile expo that has been organized in India so far. Back to you. Yeah, Debendu. Also drawing inspiration of Prime Minister's 5F vision, Bharat Tex 2024 is to focus on the entire textile value chain. And how will this help in boosting the trade and investment? And also a lot of talk of sustainability is being held. Well, of course, that's right, because we have also seen during the G20, Prime Minister talking about circular economy, and also if I can clearly remember, the Prime Minister had worn a jacket which was made of plastic. So, some of these unique methods to create textiles out of waste is also something that we are expecting to see at the Bharat Textile Expo 2024, because the Prime Minister's perhaps one of the major goals was to promote sustainability, and what better than recycling plastic waste to create clothes. And what better again for setting an example of the Prime Minister wearing a jacket that has been made out of recycling of plastic waste. So we will definitely see many products lined up at the expo here in New Delhi that could perhaps show us how sustainably we can manufacture clothes, and how circular and how perhaps a circular economy through the manufacturing of sustainable clothes, textiles, in fact, can be achieved in India, and perhaps India could show the way to the world on as to how sustainable manufacturing can take place even in the textile sector. So, of course, sustainability is perhaps one of the key factors of the Textile Expo 2024, and it is clearly outlined in the agenda for Bharat Tex 2024 as well, where the government also talks about sustainable products as well as circular technology products made with the use of circular technology. So circular technology is actually, as I explained earlier, is actually a method through which waste is recycled to make textiles. So and good quality textiles. I remember seeing the same kind of jacket that the Prime Minister wore during another textile expo sometime back here in New Delhi, and it doesn't that it is made out of recycled plastics. So how we can develop, and how India has developed these technologies, and how these technologies can be adopted by foreign countries, and we have more than 100+ countries, delegates from 100+ countries that are in Delhi currently that will witness the Bharat Textile Expo 2024, could perhaps take some leaf out of that, and India could be again the gateway to the world on this. Back to you. All right, an important message there of sustainability to be given by India to the world. Also, there are a lot of CEO roundtables and B2B and G2G meetings expected. Could you tell us about those? Well, of course, in such a program, when there are CEOs from different parts of the country, and in fact also different parts of the world. So these CEO meetings and roundtables of different CEOs do take place, and these are very important because the different CEOs of different companies that have assembled here will negotiate and talk about how each one can cooperate with each other to make the industry more better, and how perhaps the Indian CEOs could push for exporting Indian products into foreign countries, and show the Indian products as more viable as well as more feasible to the foreign delegates that have already come here. And also, I'm given to understand there'll be multiple number of MOUs that could be exchanged between different countries and different CEOs and different companies that have gathered here for better cooperation and better trade partnership between countries and between companies of different countries that have gathered here already. So, the 3 days are packed with events, of course, business events that will bring in more trade, that will boost trade and trade tourism
to India and different parts of the country where these textiles are manufactured or are the gateways of these these textiles and cottons in different parts of the world. All right, this is a step towards self-reliant and developed India. The event also signifies a significant strides towards advancing India's textile sector and enhancing its global standing. Well, of course, that's absolutely right, Dipakshi. When we talk about holding such an expo, an expo at this scale and this magnanimity, where two major locations such as the Bharat Mandapam and the Yashobhumi, both in New Delhi, spread across thousands of acres, in fact lakhs of acres of square feet areas, showcasing India's talent, showcasing India's textile, the cotton, the yarn, the machinery, and the techniques, methods, craftsmanship. India to the world is in fact a message, perhaps where India. It's time for India now to, and India is now self-reliant. It is time for India now to be the gateway to the world, to export their products to the world, and proudly say that okay, we are wearing a product made in India. So of course, this is what is the vision of the Prime Minister here. Trying to portray to the world that and of course, Make in India has been a major successful campaign of the Prime Minister over the last 10 years now. In fact, over the last, 10 years now. So, these are, of course, are some of the initiatives that the Prime Minister has taken over the last couple of years. And we are also given to understand that the Prime Minister is going to arrive here at the Bharat Mandapam very, very shortly. And we're just waiting moments from now for the inauguration of the largest ever Bharat Textile Expo 2024. So, let us wait and, in fact, to watch what this Textile Expo unfolds in the next couple of days and how it can show to the world India's self-reliant story. All right, Dibyendu. Also, it will be another key step to further the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. There will be a lot of cultural events and fashion presentations also. Could you tell us about them? Yes, of course, there will be different designers that will showcase their products here over the next couple of 3 days, as we are expecting to have buyers from across the world who will witness their products. Of course, there will be many fashion shows. There will be cultural programs that are lined up through the evening for the next 3 days in different parts of the installations here at Bharat Mandapam as well as Yashobhumi. So, these programs are lined up all through the 3 days of this expo here in New Delhi, and of course, this is and of course showcasing fashion, the fashion shows that will showcase the different designs, and some also we're given to understand would also showcase India's traditional dresses, which include saris as well as dresses from across the different tribal belts, as well as the different types of cottons and the different kinds of fabrics that India is known for from the states of Maharashtra and its neighboring areas, where it is considered that one of the best, finest cotton of the world is available here in India. So, of course, the cultural programs as well as cuisines from different parts of the country will also be showcased here at the Bharat Textile Expo 2024. Back to you. Also, Dibyendu, that Bharat Tex 2024 is has dedicated pavilions and on sustainability, circularity, and Indie Heart fashion presentation on themes like Indian textile heritage and sustainability is also suspected. Could you elaborate on Indie Heart theme? Well, as I just said, Lepakshi, India's traditional dresses and India's traditional, the traditional forms of dresses, as well as including the Banaras sari, as well as
the different forms of materials that are available. Say, for example, the parts from Bengal, as well as the muslins from different parts, again from different parts of Bengal, the Varanasi, the weaving, the world famous Banarasi sari, and all these will also be part of the fashion parades and the fashion shows that will be organized at the Indie Heart, showcasing India's. And of course, let me also tell you that khadi will also be a significant part of the textile expo here in New Delhi, because of the government's push towards khadi, and it wants to take khadi to at a global level and to the world. So, of course, these important textile fabrics and textiles will also be featured here at the Bharat Textile Expo 2024. So, all in all, perhaps India's finest of fine materials, cottons, will be showcased here, is being showcased here at the Bharat Textile Expo 2024. Yes, well, Debindu, just hold on with us. Meanwhile, let's tell our viewers that India is among the world's largest producers of textiles and apparel. The domestic apparel and textile industry in India contributes approximately 2.3% to the country's GDP, 13% to industrial production, and 12% to its exports. India has a 4% share of the global trade in textiles and apparel. India is also one of the largest producers of cotton and jute in the world. India is also the second largest producer of silk in the world, and 95% of the world's hand-woven fabric comes from India. Also, we may tell you total textile exports are expected to reach $65 billion by financial year 26 and is expected to grow at 10% CAGR from 2019 to 2020 to reach $190 billion by 2020 to 2026. The textiles and apparel industry in India is the second largest employer in the country, providing direct employment to 45 million people and 100 million people in allied industries also. India has also become the second largest manufacturer of PPE in the world. We may also tell you that more than 600 companies in India are certified to produce PPEs today, whose global market worth is expected to be over $92.5 billion by 2025, up from $52.7 billion in 2019. Also, most importantly, India is set to achieve $250 billion of textile production and $100 billion exports by 2030. The domestic apparel and textile industry in India contributed to 2% to the country's GDP, 7% of industry output in value terms. Also, India holds 4% share of the global trade in textiles and apparel. The share of textiles and apparel in overall export basket of India was 10.33% during 2021 and 22.
आपका बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। सर, मैं शुभ्रा, व्यापार सलाहकार वस्त्र मंत्रालय। हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल सर, राज्य मंत्री दर्शना मैम, सचिव रचना शाह मैम, कंसोर्शियम ईपीसी के कंसोर्शियम के चेयरमैन एंड को चेयरमैन नरेंद्र गोयनका, बद्रेश लोडिया और वस्त्र जगत के से जुड़े हुए हर उपस्थित व्यक्ति की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस भव्य समारोह में सर आपके आने से चार चांद लग गए हैं। बहुत मेहनत की है वस्त्र जगत के लोगों ने सर। इस वस्त्र उद्योग में एक बहुत ही ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है और सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ पे रोज़गार होता है। इनफैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस है, जेंडर एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस, वो इससे सुधरता है। सर, काफ़ी मजबूत है वस्त्र उद्योग हमारा और आज आपकी उपस्थिति से इन लोगों का जो विश्वास है, जो मजबूती है, उसमें और ज़्यादा मजबूती आ गई है। सर, आपकी अनुमति से अब मैं उद्योग के चहेते मंत्री जी पीयूष सर से को आमंत्रित करती हूँ संबोधन के लिए। नमस्ते। भारत के तपस्वी, यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उद्योग जगत से, वस्त्र क्षेत्र के देश और दुनिया भर से आए महानुभाव, बुनकर, कारीगर, कामगार, स्टूडेंट्स, मीडिया के बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन से फॉरेन, उसको आकार देते हुए पहली बार भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो का आयोजन इतने भव्य स्तर पर हो रहा है। विश्व में भी बड़े फेयर्स होते हैं पर टुकड़ों में बटा रहता है। एक साथ पूरी वैल्यू चेन एक ही मंच पर लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और पूरा टेक्सटाइल सेक्टर इस बात के लिए आपका कृतज्ञ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे साथ पूरा टेक्सटाइल्स का इकोसिस्टम, उसमें कॉटन भी है, सिल्क भी है, वुल भी है, जूट भी है, मैनमेड फाइबर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सब होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच के साथ एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 4 महीने पहले जब सबसे पहले ये कल्पना की गई इस कार्यक्रम की, इस बड़े एग्जीबिशन की, तब मुझे ध्यान है इंडस्ट्री में बड़ी चिंता थी कि इस चीज़ के लिए तो कम से कम 1.5 वर्ष की प्लानिंग लगेगी, लोगों को कैसे लाएंगे, लोग कैसे तैयार होंगे। मुझे बताया गया कि आधे से अधिक टेक्सटाइल के बड़े बड़े उद्योग भी कोई भी भारत में फेयर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। मैं आभारी हूं हमारी जो मेन टीम है, नरेंद्र गोयनका, बद्रेश लोडिया, राकेश कुमार जैसे मित्रों का, कि उन्होंने ये चुनौती को स्वीकार किया। हमारे सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने मिलकर ये इतने बड़े
स्वरूप में आज भारत टेक्स 2024 को मात्र 4 महीने के कम समय में दोनों भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे विशाल वेन्यूज पर लगभग 20 लाख स्क्वायर फुट एग्जीबिशन के साथ भारत टेक्स को संभव किया। यहां उपस्थित आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तो एक जगह भी छोटी पड़ रही है। मेरे पास रोज कोई ना कोई कहता है कि हमें तो चाहिए था 100 स्क्वायर मीटर, हमें मिल रहा है सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर। फिर जाके कमी होने के कारण कुछ हैंगर्स भी बनाने पड़ गए। मैं समझता हूं आज मात्र 7 महीने हुए हैं जब इस भव्य भारत मंडपम का आपके कर कमलों द्वारा 26 जुलाई 2023 को उद्घाटन हुआ था और मात्र 7 महीने में आपकी प्रेरणा से अब ये जगह भी कम पड़ने लग गई, यशोभूमि भी कम पड़ रही है। अब आपकी अनुमति हो तो दोनों स्थानों पे फेज 2 भी जल्दी से शुरू कर दें, जो आपकी तीसरी टर्म में जिसका उद्घाटन आप जल्द से जल्द कर सकें। भारत टेक्स 2024 ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक महासंगम है, जहां हमारी पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन की क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह भारत को एक आकर्षक निवेश और सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करती है। 100 से अधिक देशों से बायर्स भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉल हो या उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु का कांजीवरम हो या असम का गमछा, मैं समझता हूं आज भारत सिर्फ वोकल फॉर ग्लोबल ही नहीं बल्कि लोकल को ग्लोबल बनाने में आपके मार्गदर्शन में एक वैश्विक मंच पर आया है। आपके नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास कर रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, सभी जगह आज कंजम्पशन बढ़ रहा है और पैटर्न भी बदल रहा है। आज लोगों की आमदनी के हिसाब से उनके पास जो खाद्य के ऊपर खर्चा होता था वो लगातार घटते जा रहा है और नई नई चीजें खरीदने के लिए एक युवा देश बड़े एस्पिरेशंस के साथ आकर्षित है। और मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा सीधा लाभ वस्त्र क्षेत्र को मिलता है। साफ नियत, सही नीति और सुदृढ़ निष्ठा की ही मोदी जी की गारंटी है। आज आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने पीएम मित्र पार्क हो, जो बड़े पैमाने पे उद्योग लगाने के लिए, डिजाइन सेंटर्स लगाने के लिए, कॉमन फैसिलिटीज देने के लिए एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क्स 7 बन रहे हैं देश में। चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, जिसके माध्यम से टेक्निकल टेक्सटाइल को बहुत बल मिल रहा है। समर्थ के माध्यम से जो लोगों का कौशल विकास हो रहा है, या इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए आपने जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन शुरू की है, इन सब के जरिए वस्त्र क्षेत्र को नए पंख मिल रहे हैं। कॉटन हो या मैनमेड फाइबर, इन दोनों के लिए एक नए टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप के माध्यम से हमने एंड टू एंड कनेक्टिविटी का प्रयास किया, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलन भी बना रहे और एक स्वर में क्षेत्र काम करे, एक दूसरे को मदद करे
और एक स्पिरिट आए पूरे क्षेत्र में कि हमें देश के लिए कुछ करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराना है। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे बुनकरों और कारीगरों के लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। आपने जो भारत के प्रोडक्ट्स को विभिन्न देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को उपहार देकर उनकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा आपने कहा है, अब देश के सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल जगत के साथियों से मेरा आग्रह है कि लोकल सप्लाई चेन्स को और मजबूत करें और स्किल, स्पीड और स्केल पर बल दें, जिससे हम 2030 तक $250 बिलियन के प्रोडक्शन टारगेट और $100 बिलियन के निर्यात के टारगेट को हासिल कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से साधुवाद करता हूं। आपके मार्गदर्शन में हो रहे इस आयोजन से मेड इन इंडिया ब्रांड सिर्फ गुणवत्ता का ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर गौरव और एक्सेलेंस का भी प्रतीक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन करें। India's textile story is a tapestry of 5,000 years of tradition and technology, a world heritage that has stood the test of time. The country's textile sector aims to cross the $1 trillion mark during the Amrit Kaal. Under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। Following the Honorable Prime Minister's mantra for development, 11 textile exports promotion councils and partners supported by the Ministry of Textiles have initiated a first of its kind global mega event, Bharat Tex 2024. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision. 5F क्या है? उसका मतलब था फार्म, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन. Bharat Tex 2024 is the largest ever textile show in India. Adopting a futuristic approach for the textile sector, never before has a mega event brought the entire value chain under one roof. Showcasing a world-class textile ecosystem themed on building sustainable and resilient supply chains. With over 3,500 plus exhibitors and 40,000 plus trade visitors, more than 3,000 plus buyers from 100 plus countries, making it a truly global event, attracting policymakers and global CEOs. Fostering business networking and trade tie-ups, disseminating knowledge via thematic discussions, masterclasses and expert interactions. With dedicated pavilions on innovation, sustainability and recycling, and featuring innovative product demos and fabric testing zones. Bharat Tex 2024 promises a unique, exciting and enlightening experience for all. Curated for entire value chain of textiles and apparel industry. Moving India
closer towards Atmanirbhar Bharat. Bharat Tex 2024 will reinforce India's position as a global supplier of quality textiles and apparels, founded on the pillars of sustainability, innovation and inclusive development. धन्यवाद सर। इतनी भव्य सोच के लिए हमें आपके शब्दों ने ही प्रेरित किया। इसी 26 जुलाई को इसी स्थान पर, इसी मंच पे, जब आपने हमें लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट होने का गर्व हमारे अंदर जगाया था, उसके बाद से सारा वस्त्र जगत हम लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम का क्रिएशन किया सर। और अब सर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब जिस मोमेंट का हम सबको इंतज़ार है, जिस पल का हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इट्स माई प्रिविलेज टू इन्वाइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर to address us, sir. कैबिनेट में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, दर्शना चरदोस जी, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, युवा एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हमारे बुनकर और हमारे कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी का भारत मंडपम में हो रहे भारत टैक्स में अभिनंदन। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है। इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई है। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह
एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। मैंने अभी भारत की पूरी वस्त्र यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहां टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित है। यहां बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी हैं, कारीगर साथी हैं, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
एमएसएमईज को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमईज की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे ना सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर देश में बड़ी संख्या में रोजगार देता है। इसमें फार्म से लेकर एमएसएमईज और एक्सपोर्ट तक अनेक रोजगार बनते हैं। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा है। टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है। मैं ये कह सकता हूं कि बीते 10 वर्षों में हमने जो भी प्रयास किए, उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है। यानी खादी गांवों में लाखों रोजगार बना रही है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं, बीते 10 वर्षों में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, इससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को काफी लाभ मिला है। साथियों, आज भारत दुनिया में कॉटन, जूट और सिल्क के बड़े उत्पादों में से एक बना है। लाखों किसान इस काम में जुटे हैं। सरकार आज लाखों कॉटन किसानों को सपोर्ट कर रही है। उनसे लाखों क्विंटल कॉटन खरीद रही है। सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, वो भारत की अपनी पहचान बनाने की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है। हम आज जूट किसानों और जूट श्रमिकों के लिए भी काम कर रहे हैं। हम सिल्क सेक्टर के लिए भी लगातार नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। 4A ग्रेड सिल्क के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कैसे हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। परंपरा के साथ साथ हम ऐसे सेक्टर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जिसमें भारत को अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट का पोटेंशियल कितना अधिक है। इसलिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने
नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया है। हम चाहते हैं कि इसके लिए मशीनरी और उपकरण का विकास भी भारत में हो। इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। टेक्निकल टेक्सटाइल में स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्कोप है। इसके लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है। साथियों, आज की दुनिया में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन है, तो दूसरी तरफ यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी की डिमांड भी है। और दोनों के साथ रहने के लिए पर्याप्त जगह भी है। जब भी हैंडमेड डिजाइन या टेक्सटाइल की बात आती है, अनेकों बार हमारे कलाकारों का बनाया कुछ ना कुछ दूसरों से कुछ अलग दिखता है। आज जब सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, तो ऐसी कला की डिमांड भी और बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत में हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। हमारे इन साथियों के लिए भी सरकार देश भर में एग्जीबिशन से जुड़ी व्यवस्थाएं बना रही है। साथियों, एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। पिछले 10 साल में भारत यार्न प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन और एपरल प्रोडक्शन तीनों में ही 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। 2014 के बाद से ऐसो 380 के करीब
BIS स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर रहे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2014 के पहले के 10 वर्ष में जितना FDI आया था उससे लगभग 2 गुना FDI इस सेक्टर में हमारी सरकार के 10 साल में आया है। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को हमने देखा है और इससे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप सभी क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड के दौरान अनुभव किया है। जब देश और दुनिया PPE किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। सरकार और टेक्सटाइल सेक्टर ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को एकजुट कर दिया। रिकॉर्ड समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पर्याप्त मास्क और किट पहुंचाए। मुझे विश्वास है कि हम भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इसमें तो ताली बजनी चाहिए ना भाई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबतें बता करके रोना रो करके सरकार के गुल लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है। अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, हम उन बदलावों में सदियों से आगे हैं। जैसे पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो खाने में भी बैक टू बेसिक पर जा रहा है, वो रहन सहन में बैक टू बेसिक पर जा रहा है, और इसलिए वो कपड़ों में भी बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है। वो 50 बार सोचता है कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उस पर किस केमिकल वाला कलर है, उसको टेंशन दे देता है। वो चाहता है क्या नेचुरल कलर का बना हुआ कपड़ा मिल सकता है क्या। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा, कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या। यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है, 2-3 इंच कम हो जाएगा। और इसलिए बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये साइकी जो है ना, भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मुझे क्या जरूरत है, मेहरबानी करके आज के इस एग्जीबिशन के बाद उससे बाहर निकलिए। क्या आप में से किसी ने स्टडी किया है अफ्रीकन मार्केट में किस प्रकार का कपड़ा चाहिए, किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, किस प्रकार का साइज चाहिए? हम नहीं करते। वहां से किसी ने मंगवाया, ऑर्डर दे दिया, कर दिया, अलग बात है। मुझे याद है
अफ्रीका के लोगों को जो कपड़े पहनते हैं तो थोड़ी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ जो चौड़ाई होती है वो हमारे लोगों के साइज पे होती है, तो हमारा तो कुर्ता बन जाएगा लेकिन उनका नहीं बनता है। तो हमारे सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति ने उस पर कोशिश की और उसने, वो हाथ से बनाता था, कपड़ा बुनकर था, उसने अपना साइज बड़ा किया और बड़ी बीथ वाली उसने कपड़ा बनाना शुरू किया और उस पर पेंटिंग भी उन लोगों को जैसे रंग भांति भांति के कलर चाहिए थे उसने किया। आपको हैरान होगा, अफ्रीका के मार्केट में उसका कपड़ा बहुत पसंद, क्योंकि बीच में सिलाई की जरूरत नहीं थी, एक जगह पर सिर्फ सिलाई कर दी, उसके कपड़े बन जाते थे। अब ये थोड़ी रिसर्च करें। मैं अभी एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने कहा दुनिया में, पूरे यूरोप में जिप्सी समाज बिखरा हुआ है। आप अगर जिप्सी के लोग जो कपड़े पहनते हैं उसको बारीकी से देखेंगे तो हमारे यहाँ नेचुरल कोर्स में जो पहाड़ों में पहने जाने वाले कपड़े हैं या हमारे यहाँ राजस्थान के, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं। उनकी कलर की चॉइस भी वैसे ही है। क्या कभी किसी ने कोशिश करके जिप्सी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा है क्या? ये मैं बिना रॉयल्टी एडवाइस दे रहा हूं। हमने सोचना चाहिए जी, दुनिया को इन चीजों की जरूरत है। क्या हमारे यहाँ, अब मैंने देखा कि इसमें केमिकल वाले नहीं है इस पूरे एग्जीबिशन में। मुझे बताइए, कोई भी कपड़ा केमिकल वालों की मदद के बिना बाजार में काम आएगा क्या? लेकिन आपकी सप्लाई चेन में केमिकल वाला नहीं है। अच्छा होता वो भी होता, और कंपटीशन हो कि नेचुरल कलर कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल से बने हुए कलर कौन प्रोवाइड करता है, और हम दुनिया को उसका मार्केट कर। हमारी खादी में दुनिया में जाने की ताकत पड़ी है जी। लेकिन हम आजादी के आंदोलन या नेताजी लोगों के चुनाव का ड्रेस कोड वहीं तक सीमित कर दिया खादी को। मुझे याद है 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। पराक्रम में कह रहा हूं कि मैं जिस लोगों के बीच में रहा हूं और जिस बैकग्राउंड में जिया हूं, इसको पराक्रमी कहा जाए। 2003 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर को मैंने फैशन शो किया। अब हमारे देश में आज भी कहीं फैशन शो करो तो 4-6 लोग तो झंडा लेकर के विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2003 में क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ NID के जो लड़के थे उनको थोड़ा समझाया। मैंने कहा मुझे 2 अक्टूबर को ये खादी जो नेताओं का कपड़ा है ना उसमें से बाहर निकालना है। ये सामान्य जनता के कपड़ों में मुझे बदलाव लाना है। थोड़ी मेहनत की और मैंने गांधीयन, विनोबा जी के साथ काम करने वाले सारे गांधीयन लोगों को बुलाया। मैंने कहा बैठो यहाँ देखो। और वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए वो गीत चलता था, वो पर फैशन शो चलता था और सारे यंग बच्चे आधुनिक खादी के वस्त्र पहन करके आए। तो मुझे बालजी, विनोबा जी के एक साथी थे बालजी, वो अब तो रहे नहीं रहे, वो मेरे साथ बैठे, बोले हमने तो कभी खादी का ये सोचा ही नहीं पहलू, यही सच्चा रास्ता है बोले। और आप देखिए नए नए प्रयोगों का परिणाम क्या है कि खादी आज कहां पहुंच गया है। ये अभी तक ग्लोबल तो बना नहीं है, अभी तो हमारे देश में गाड़ी चल रही है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं साथियों जिस पर हमने सोचना चाहिए। दूसरा, क्या भारत जैसे देश में जो टेक्सटाइल के इतिहास में दुनिया में उसके फुटप्रिंट बहुत ताकतवर है। ढाका की मलमल की हम चर्चा करते थे जी, अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था, ऐसा समझाते थे। अब क्या कथा ही सुनाते रहेंगे क्या?
क्या हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मशीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए रिसर्च, हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इवन कभी अनुभवी लोग बहुत सी चीजें करते हैं। आपके सामने डायमंड इंडस्ट्री का उदाहरण है। डायमंड क्षेत्र के लोगों ने जो जो मशीन रिक्वायरमेंट थी उसकी सारी चीजें यहां डेवलप की है। और डायमंड इंडस्ट्री का काम, कटिंग एंड पॉलिशिंग के काम में भारत में बनी हुई मशीन काम में आने लगी है। क्या टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम उस प्रकार से मिशन मोड और एक आपका एसोसिएशन बड़ी कंपटीशन करें कि जो नया मशीन, सरल मशीन, कम बिजली उपयोग करने वाला, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, वैरायटी ऑफ चीजें बनाने वाला मशीन लेके आएगा, उसको इतना बड़ा इनाम देंगे। क्या नहीं कर सकते क्या आप लोग? पूरी तरह नए सिरे से सोचो दोस्तों। आज हम सोचे कि दुनिया में हमारे मार्केट के लिए उनके चॉइस का हम पूरा सर्वे करें, स्टडी करें, रिपोर्ट जारी करें। भाई अफ्रीकन देशों में इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, यूरोपियन कंट्रीज को इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनको इस प्रकार की जरूरत है। हम क्यों न बनाए? क्या दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो कपड़े पहनने होते, बहुत बड़ी, यानी एक बार उपयोग करो फेंक देना होता है, यानी उसका मार्केट बहुत बड़ा है। क्या कभी दुनिया को हमने एक ब्रांड बनाई कि भारत से बनी हुई ये चीज एश्योर्ड है कि आप हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा ऑपरेशन करना है, ये पहन के जाइए, पेशेंट को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या हम इतना ब्रांड बना सकते हैं? यानी ग्लोबली सोचिए साथियों, भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम कृपा करके दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं हैं जी। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, लगता है बहुत बड़ी फैशनेबल है। सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे यहां अलग अलग इलाके की पगड़ी क्यों आई होगी भाई? हमारे यहां कभी कोई महिला वस्त्र पहनते समय अपने पैर का 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा कोई देख ले पसंद नहीं करती थी। उसी देश में कुछ लोगों का कारोबार ऐसा होता था कि उनको जमीन से 6-8 इंच नीचे कपड़े पहनना जरूरी था, तो उनके लिए वो फैशन चलती थी हमारे देश में। जो पशुपालन का काम करता था, उनके कपड़े देख लीजिए। मतलब भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। हर दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है?
हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है, देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग, हाँ, सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में आपके जिन सपने हैं उसको पूरा करने में जो जो रुकावटें हैं दूर करने का काम करें। उसके लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं जी, बहुत हिम्मत के साथ आइए, नए विजन के साथ आइए, पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके आइए। हिंदुस्तान में माल बिक रहा है, पहले 100 करोड़ का बेचा, इस बार 200 करोड़ का बेचा। ये इस चक्कर में मत पड़िए जी। पहले एक्सपोर्ट कितना होता था, अब एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। पहले 100 देश में जाता था, अब 150 देश में कैसे जा रहा है। पहले दुनिया के 200 शहर में जाता था, अब दुनिया के 500 शहर में कैसे जा रहा है। पहले दुनिया के इस प्रकार का मार्केट में जाते, अब दुनिया के 6 नए मार्केट को हमने कैसे कैप्चर किया, इस पर सोचिए। और आप एक्सपोर्ट करोगे तो हिंदुस्तान के लोगों के कपड़े भी ना रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। यहां के लोगों को जो चाहिए वो कपड़े मिल ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so that was the Prime Minister giving his candid address at Bharat Tex 2024 at Bharat Mandapam in the national capital. In his address, the Prime Minister talked of how this expo shows the glorious past of Indian textiles and artisans with exceptional skills are present here at the forum. He talked of how there are 4 pillars of developed India, that is the poor, the women, the farmers and the youth. And he also talked of how these 4 pillars are linked to this industry. The Prime Minister also talked of how all aspects of the 5F vision will be strengthened through this expo. He also referred to the number of steps taken by the government to strengthen the MSMEs. He also talked how the gap between markets and artisans is reduced now, and modern integrated world-class infrastructure is being made available to the industry. The Prime Minister also talked of the 7 PM Mitra Parks that will bring in more opportunities for the sector. Khadi has also given more power to women and has also provided more employment opportunities. And he also talked of how India is leading in production of cotton, jute and silk. Kasturi cotton, specifically the Indian variety, has changed India's image on the global page, and so have silk and jute as well. The National Technical Textile Mission has been launched that will give scope to the startups in this industry. He also talked of the focus of the government being on both skill and scale. He also enlisted the endeavours that have been taken by the government to strengthen skill development. He referred to vocal for local and local to global, that these have also changed and strengthened the sector. He also mentioned how quality control is also a focus area of the government. He talked of the times of the COVID times when masks and kits were made in record time. And he also, in fact, assured of all the help from the government to this sector. He called for a comprehensive approach in tackling challenges. He also talked of how in today's time, back to basics approach in clothing is also being looked into. And India is among the world's largest producers of textiles and apparel, and also the domestic apparel and textile industry in India contributes approximately 2.3% to the country's GDP. He also called of recognizing and pointing to the opportunities in the international markets by the artisans, by the sector here in India, that would give more strength to the sector. So in a nutshell, that was the gist of the Prime Minister's address at the forum. In the bulletin that follows, we will get you more highlights of
of the Bharat Tex 2024 that is currently on. The 3-day expo is currently on in the national capital. Up next, we're heading for a short break. Stay with us. We'll be back in just a bit.